So hello everyone. To- Today I'm going to solve the 900 problem of code forces. Difficulty level 900. So this is the first problem. I will solve 5 problem 1 to 5, and I will also copy paste the link in the description. So if you want to solve with me, so start. Okay, so Vlad, like everyone else who loves to sleep very much every day, Vlad has to do and things each at a certain time. For each of these things, he has an alarm clock set. It triggered on HIR and MINUT, okay, from 24-hour time format. Comes, then it will be 13. Then if it is 23:59, then it will be this. Okay. So he went to bed at H hours and M minute. Okay, and ask you the answer how much time it will be able to sleep until next alarm clock. Okay. The first line of these is contain three integers NMH, the number of alarms and the time when went to bed. Then H and I will be N. Okay, okay. So basically, what we are given N alarms. Yeah, N alarms we are giving is of like HI, mint is MI. Sum is like everyone is given HI and MI. And we are giving a time h comma m when it reached to the bed, Vlad reached to the bed. So first thing what I want to do is I will sort all HIMIs. Sort first, what I am thinking is I will sort all these things, all HIMIs. So it will be like from 0, like this is 20-hour time and this is 0. Some alarms are here. So if I should, I get a like idea. And then if the when Vlad goes to bed is this time, then I simply took the first like the alarm that is more than that, and this time is the sleeping time. Okay, if the time is here when Vlad goes to sleeping here, then the time will be, if there is no time between that time to 24 hour, like this is the last time, is of the last time, then the first one, like the total sleep time will be 0 to this time, like ye plus this will be the total time where Vlad goes to sleep. Okay, so yeah, there are only two cases. So if I have to code this, first is test cases, then NHM, and then capital H and capital N. I will be taking all this NHM. Then we have vector of a pair of int comma int. Then will be alarms. This, and then I will taking all the alarms in dot first alarms.
I will take input of first and second alarm, like hour and minute. This will give me H and M. Okay, yeah, that's it. Then I will show all these alarms dot begin and alarms dot end. I will show all of them. Then find the, like, finding the upper bound. Okay, it will be the upper bound, or I will say lower bound, and z will be the index. That will be the next alarm. Like in it is saying that if it is, if time is equal, then what we have to do? No zeros. Like if an alarm clock at the time when he goes to bed, then the sleep time will be 0. So we have to take the lower bound. So what I will say is lower bound. Sorry. Alarm dot and will be pair of h comma minus alarm. Okay. So if you don't know about lower bound or upper bound, so you may go to the Geek for Geeks. So what will do, it will in lower bound or upper bound, सो लोअर बाउंड वो भी देती है, अगर ये एच को एम भी इंक्लूड है ना तो वो भी दे देगी, और अपर बाउंड मतलब इससे नेक्स्ट वाले देगी, लेकिन लोअर बाउंड अगर ये भी इंक्लूड है तो वो एलिमेंट भी दे देगी. ओके, सो इफ नेक्स्ट अलार्म इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू अलार्म्स डॉट साइज, मतलब कि जिस इसने जो इंडेक्स दिया वो लास्ट वाला है, मतलब इसने जो इंडेक्स दिया, ओके, लाइक ये जो वो था, तो यहाँ पर एच कॉमा में तो इसके बाद कुछ नहीं है, तो ये मुझे इंडेक्स देगी वो लास्ट वाला देगी, एन देगी इसको, लेकिन मैं इसमें से माइनस कर दूँगा ना तो वो जो एन देगी, एन देगी मतलब कि आई हैव टू टेक द टाइम फ्रॉम द फर्स्ट वन. तो टोटल टाइम कितना होगा, वो होगा जो फर्स्ट का टाइम है, फर्स्ट का टाइम टोटल टाइम ऑफ स्लीप हो जाएगा. टोटल टाइम इज इक्वल टू alarms of 0 dot first, this will be hour, total hour or total minute in total minute is equal to 0 dot second. कितनी मिनट आ गई, इतनी सेकंड आ गई. ये कहाँ से आई है कि अगर लाइक लास्ट में कोई आ गया यहाँ पे, अब इसके बाद कुछ नहीं है, तो फिर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 से इतना, ये टाइम प्लस 24 माइनस ये टाइम, तो फिर ये कितना जाएगा, यार आ गए. अब लाइक अगर मेरा वो है लाइक मेरा टाइम है यहाँ पे, जो लास्ट वाला टाइम है ये है करीब 21:42 मिनट. ओके, ये 20, अब इसके बाद कुछ नहीं है, तो मैं कितना टाइम लूँगा, 24 माइनस 20, सॉरी
ज़्यादा बड़ा। 24 माइनस जो अभी करंट टाइम है 21 -1, सो ये कितने आ गए, 2 घंटे प्लस 60 माइनस मिनट, दैट इज़ वो अभी कितनी है 42। तो ये आ जाएगा इतने आवर और इतने मिनट। तो लाइक 24 या मैं कहूँ 23 माइनस 20, मतलब 23 माइनस जो करंट टाइम है वो। तो टोटल आवर में मैं ऐड कर दूंगा जो फर्स्ट वाला वो भी ऐड कर रहा हूँ मैं। 23 माइनस मेरा एच, और मिनट कितनी हो जाएगी 50 या 60, 60 माइनस जो मेरी करंट मिनट है एम। तो मैं चेक करूँगा अगर इफ़, अब क्या होता है टोटल मिनट 60 से ज़्यादा हो गई तो आर इंक्रीज हो जाएगा, आर विल बी इंक्रीज बाय 1 एंड टोटल मिनट विल बी आर विल माइनस बाय 60। ये हो गया मेरा, इतने टाइम वो स्लीप करेगा। तो फिर मैं टोटल आर टोटल, अगर वो उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो, लेकिन एल्स इसमें क्या है मतलब कि जो एच कोमा एम है इज़ लास्ट, मतलब इसके बाद कोई है ही नहीं पॉइंट 24। लेकिन अगर इस यहाँ पे कुछ होगा तो फिर वो कितना कि लाइक जो अभी करंट ये है मेरा कि मैं भी करंटली एच को मैम ये है, और इसके बाद यहाँ पे है ये है मेरा लाइक 22, नेक्स्ट आइटम 42, 22 42, और अभी मेरा है जो 1848। ओके, तो कितने आर होंगे मेरे, टोटल आर मेरे कितने हो जाएंगे 22 माइनस 18, इतने तो आर होंगे, ठीक है। और मिनट कितनी होंगी, मिनट होंगी 42 यही बची हैं, ठीक है। नहीं नहीं, ये -1 और ये 42, लाइक जो मिनट है यहाँ पे ये मिनट प्लस 60 माइनस 48, क्योंकि अब इसको मैं अगर प्लस कर दूँ +1 ही कर दूँ, ठीक है, मतलब +12 कर दूँ तो ये 19 हो जाएगा ना, इसलिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ लाइक ये है 18, अरे सही, ये 1848 अभी। लाइक अभी मेरा ये काम, ओके, लाइक जो आंसर होगा यहाँ पर मैं अगर मैं टोटल आर लिखूँ, टोटल आर हो जाएंगे अलार्म्स डॉट वो क्या जाएगा जो नेक्स्ट अलार्म है,
नेक्स्ट अलार्म मैंने यहाँ से लिया, ये जो नेक्स्ट अलार्म होगी ना वो पॉइंट डॉट फर्स्ट माइनस एच माइनस वन। माइनस वन और टोटल में आ जाएंगे नेक्स्ट वाला डॉट सेकंड नहीं प्लस एम और ये 60 माइनस। ठीक है, अब लेकिन अगर लाइक ये क्वेश्चन आ जाए कि माइंड में ये क्वेश्चन आ जाए कि अगर ये दोनों सेम ही हो तो लाइक ये मैं कर रहा हूँ यार, ये आज मेरा ये काम नहीं कर रहा यार सही। लाइक ये अभी मैं सोया हूँ 7:12 पे और नेक्स्ट अलार्म है 7:23 पे। ओके, तो वो भी सेम ही आएगा आंसर, क्योंकि देख मैं क्या कर रहा हूँ, जो नेक्स्ट अलार्म है 7 - 7 - 1, तो ये कितना हो जाएगा -1। तो फिर लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 23 + 60 - 12, तो ये कितना है 48 + 23, तो ये 1 आवर से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12 3 8 3 11 लाइक 11 + 60 इतना हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन मैं जैसे ही रिमाइंड करूँगा 60 से, मतलब 60 माइनस करूँगा और आर में एक प्लस कर दूँगा। ठीक है, तो ये आर तो 0 हो जाएगा और ये 11 बच जाएगा, तो वो सही आंसर देगा। ओके, तो फिर ये टोटल आर टोटल में आ जाएंगे। टोटल आर चेक कर लेते हैं केसेस। अलार्म्स 16 no matching for the pair make pair ओके, मैंने एक चीज करना भूल गया यहाँ पे। अब सही है बिल्कुल, आई थिंक सो। हाँ, लेकिन आंसर तो गलत आ रहे हैं। 213 00 10 55 इसमें आंसर 147 147 फर्स्ट में।
तो फर्स्ट में 6-13 पे मैं सोया और 8 पे हुआ। फिर नहीं तो यही केस हो गया। तो ये कितना आ गया? फर्स्ट विल बी 8 माइनस 6 2 माइनस 1 1। फिर 60 माइनस अलार्म डॉट सेकेंड, 60 में से गए 47 प्लस 1। इफ टोटलमेंट इज ग्रेटर देन एम, M0 है, M13 है सॉरी। अरे यार इसमें ये माइनस एम आएगा, ये प्लस हो। 60 माइनस एम, क्योंकि मैं इसमें सोया हूँ ना। हम्म, 1 47 10 55, हाँ सही है। Yeah, it is done. Okay. So this is that our first problem. So let's try this problem second. So second problem में क्या दे रखा है? You are given a beta testing the new secret. This bit will add guest to the game. Simply the word may be represented to an array I, where the I column has the high AI. There are m quests you have to test. The j of them is represented by two integer sgtj. In this quest, you have to go to from the column sj to column tj. At the start of the quest, you are appearing at some, as in one move you can move to the column x minus 1 or to x plus 1. In this version, you have to create boots with allow you to fly. Since it is a beta version, they are bugged, so they only allow you to fly when you are going up and have infinitely flight duration. When you are moving from the column with a height p to column with height q, then there will be some of damage that if the height p is greater than q. If you are going from you are moving from height p to q. If p is more than q, then damage will be, if you are going up, that means you have damage of first you are at p and moving to column q. If p is greater than q, okay. If you are going down, then damage will be this one. If you fly up, then if you moving down, then this will be the damage. Determine the minimum amount of fall damage you can during the quest. Okay. J of then duration to S contribution, and then you have to move from doing J quest. Okay. So okay, what in this question is said that basically we are given an array, okay, with we are given an array with some value ai a1 a2 something like that an, and we are given m queries, something like m queries l to r. Okay, so we have to move from L index to R index. Let's see, this is the R index. So we have to calculate if
if I am at here at I position and I am moving to I plus 1. Okay, this is not the case. Maybe if you are moving backward, yeah, you can move also backward like 7 to 1. So you can move from I to I plus 1 or I to I minus 1. Both are valid. Both can be in the option. So what we have to do, if you are moving from I to I plus 1 and here value is P, here value is Q. Okay. If if you are moving up like P, Q is like, then there are two test cases. They may be, if Q is greater, then damage will be 0. If P is greater, the damage will be P minus Q. Then we have to calculate the total damage. That's it. So what we can do is, we are just like here we can make two arrays, from one is backward and one is forward. Okay, so what we will do is that, like this, say forward, in forward direction, if we move from this I point to I plus 1, then what will be the damage? Then we will add here, here, here. So okay, and we can do, okay, this will be the damage. Okay, and I will make something, what is that, like summary, and I will add, like here is 2, then 3, then 4, then 5. Okay, then 6, like this is the result I am getting. Then I will making a summary, like then 2, here is 5, 2, 3, then like uh this, like this index I will be having value from some from 0 to that position. Okay, so if we have to find from here to here, like L to R, this is L, this is R, then I will subtract uh, this value from this from L minus 1 value. Okay, because L value contain 0 to L, and we have to find from L to R, so, and L minus 1 value contain this value. So we have to this for the forward, like I am moving from L to R such that R is greater than L, then I will make another array that will be backward similar to this one. Okay, backward, that will contain, that will be used if I am moving from L to R so that L is greater than. Okay, like I am moving backward. This is what I will do in this problem. तो फिर सो क्या क्या दिया रखा है, एन कॉम एम. सो इन एन कॉम एम, टेस्ट केसेस नहीं है इसमें. और फिर उसके बाद वेक्टर ऑफ एन, वेक्टर ऑफ एन ऑफ ए ऑफ एन. आई एम टेकिंग सीन ए ऑफ आई. ओके, उसके बाद एम लाइन्स विल बी एस टू एल, फिर विल बी एन कॉमा एन एम लाइन्स. ओके, अब मैं पहले दो वो बना लेता हूँ वेक्टर, एक बैक ऑफ सेम साइज, इफ आई, अगर मुझे बैक मूव करना पड़े, एक फॉरवर्ड, एक बैकवर्ड और एक फॉरवर्ड साइज. दिस इज साइज है. तो फॉरवर्ड में मैं लूँगा तो प्लस प्लस 1 से स्टार्ट कर देता हूँ.
इफ मैं कहूँगी ए ऑफ आई माइनस 1 से कम है तो फिर डैमेज होगा, तो फिर बैक कितना होगा, बैक ऑफ आई विल बी ए ऑफ आई माइनस, और साथ में मैं वो भी ले रहा हूँ, समरी भी कर रहा हूँ। इसको अलग से लिख सकती है, इसमें लिख दो तब भी सही है। ठीक है, ये बैकवर्ड है, अरे सॉरी सॉरी ये तो फॉरवर्ड है, अगर फॉरवर्ड मूव कर रहा हूँ तो, और फॉरवर्ड मूव कर रहा हूँ। अगर मैं बैकवर्ड मूव करूँगा तो मतलब कि एन से मूव स्टार्ट करूँगा मैं, n-2 से, क्योंकि n-1 पे जीरो ही वैल्यू होगी और ये जीरो तक जाएगा, माइनस माइनस। अब मैं जा रहा हूँ आई से i+1, तो अगर a(i) ज़्यादा हुआ, सॉरी मैं जा रहा हूँ देख फॉरवर्ड में, जीरो अगर 1 से 2 पे जा रहा हूँ मैं, तो मेरे डैमेज जब होगा जब 1 ज़्यादा होगा 2 कम होगा, 1 ज़्यादा होगा, तो फिर अगर मैं i-1 से, लेकिन ऐसे लिख लो सिंपल, जीरो पे है, अगर मैं i-1 से आई पे जा रहा हूँ, i-1 से आई की तरफ जा रहा हूँ मैं, i-1 से आई, तो आई अगर ज़्यादा है, i-1 ज़्यादा है मेरा, तो फिर ऑफ आई कितना हो जाएगा, i-1 - आई। लेकिन अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, आई से i-1 ही जा रहा हूँ मैं भी, ठीक है, 1 रख दो कोई दिक्कत नहीं, हाँ, -1 से +1, फिर वो जीरो तक पहुँच जाएगा, हाँ। मैं अगर i+1 से आई पे जा रहा हूँ, अगर i+1 अगर ज़्यादा हुआ तो बैकवर्ड ऑफ आई मेरा i+1 ज़्यादा है, -i होगा, और ये i+, ओके, अब सही है। अब मैं सॉरी एम क्वेरीज हैं, एम क्वेरीज को मैं एड्रेस करूँगा, तो हर एक क्वेरी में एल दे रखा है, मुझे एल से आर में जाना है। तो पहली तो क्या होगी, अगर आर सेम हो सकता है, इनमें दे रहा है कहीं एल आर सेम नहीं है, S to 2 में जा रहा तो सेम नहीं है, अगर आर बड़ा है तो मेरा आंसर क्या जाएगा, फॉरवर्ड, पहले ये देखिए जीरो इंडेक्सिंग है या 1 इंडेक्सिंग है,
वन इंडेक्सिंग होगी नहीं तो ना। 1 to 2 यहाँ से यहाँ तक दो। तो पहले एल, इनको जीरो इंडेक्सिंग में हो गए। तो आंसर कितना जाएगा, फॉरवर्ड ऑफ आर माइनस फॉरवर्ड ऑफ एल। अगर वो हुआ बैक वाला तो फिर मुझे बैक आर माइनस ये सही है एल। अगर एल में बैक में ए आई है तो आई पे तो +1 बार आ जाएगा। हाँ सही है। चलिए कोशिश। ओहो इंट एम रीडिक्लेरेशन कहाँ हो गया, अरे अच्छा यहाँ नहीं आएगा रीडिक्लेर। अब 2 10 0 7 3 1, 2 10 0 7 3 1, हाँ सही है। क्या ही हो गया। मेरा आंसर फाउंड, अच्छा लॉन्ग लॉन्ग आ रहा है क्या यार। लॉन्ग लॉन्ग आ रहा है भाई। ओ गाइस ये मिस्टेक हो गई मेरी, ये मैंने इसकी नहीं देखी। 10⁻⁹ है तो फिर लॉन्ग लॉन्ग भी जा सकता है। तो इसको इसको तो सही है, इसको लेना पड़ेगा लॉन्ग लॉन्ग भी लॉन्ग लॉन्ग। अब सही है। अरे क्या है सबमिट। इसने दिखा भी दिया कि वो है आउट ऑफ बाउंड है, एक्सेप्ट हो गया। तो थर्ड प्रॉब्लम अरे वाह शिट मैन। ओके ये दे रखा है, मार्क इज क्लीनिंग रो of an room. The ith room has a non-negative dust level AI. He has a magical cleaning machine that can do the 3 steps. Select to index I to J or I से J -1 तक. All are strictly greater than 0. Okay. Then set AI to AI -1 and set AJ to. Okay, basically okay, ये कहना क्या जा रहा है, बस यही करना है ना, एक ही ऑपरेशन कर सकते हैं। कैन डू द फ्लोइंग 3 सेट ऑफ ऑपरेशन। अच्छा मतलब पॉसिबल ये होगा तभी हो जाएगा। ओके और एट द लास्ट 0 से n-1 सारा जो डस्ट है वो ए ऑफ एन पे करना है। ओके सो बेसिकली इसको रूम क्लीन करना है। okay, तो गिवन क्या है कि लाइक ये है एक डस्ट लेवल है, ये ए ऑफ 1 पे कुछ डस्ट लेवल है, मे भी कितने भी हो सकते, ग्रेटर देन मतलब नॉन नेगेटिव है, 0 भी हो सकता है। और यहाँ पे ए ऑफ 1 पे मुझे सारी कलेक्ट करनी है। तो मैं अगर कोई आई लाइक ये जे है, मैंने आई को मैं जे में चूज़ कर लूँ, ये मेरा आई है और ये मेरा जे है। ओके तो मैं मतलब कि एट वन टाइम मतलब एक ऑपरेशन में मैं यहाँ से -1 करके यहाँ +1 कर सकता हूँ जब, हाँ यही हो सकता है ना कि लाइक यहाँ से मैंने हाँ यहाँ से -1 करके यहाँ +1 कर दूँगा। उसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए ए ऑफ आई
मतलब ए ऑफ आई से लेके ए ऑफ जे माइनस वन सब में एटलीस्ट जो डस्ट है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। Okay? तो ए ऑफ आई ग्रेटर देन जीरो, तो फिर ऐसे ये करना है। तो क्या पूछे वो, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने लगेंगे। तो पॉसिबल केसेस देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। तो देख, पहला केस अगर ऐसा है, लास्ट में तो ए एन पे कोई मैटर नहीं करता, कितना भी हो, जीरो या वन हो, कुछ भी ना हो, ये एन है, ठीक है। यहाँ पर अगर टू हो गया, यहाँ पर जीरो हो गया, फिर यहाँ पर थ्री हो गया, फिर यहाँ पे जीरो हो गया, फाइव हो गया, और इसके यहाँ आगे जीरो। तो देख यहाँ के इसके आगे लाइक फर्स्ट वन जहाँ पे नॉन नेगेटिव डैश है ना, वहाँ से स्टार्ट करना है हमें। उसके अलावा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है हमें, कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये रहने दो। अब मैं यहाँ से एक यहाँ तक ला सकता हूँ, ठीक है। फिर पहले तो मैं देख मैक्स क्या करना चाहूँगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ से मेरा सीधा मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस तक चला जाए। तो मैं एक तो अगर यहाँ नहीं है यहाँ पर लेके आऊँगा, फिर नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ एक को। तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ से लेके मतलब n माइनस वन तक सारे में एटलीस्ट एक डस्ट में कर दूँ। फिर उसके बाद अगर मैंने वो कर दिया, ठीक है, उसमें कितने ऑपरेशन लगेंगे, जितने खाली हैं, ठीक है, उतने ऑपरेशन लग जाएंगे, कितने भी लाइक थ्री टू वन, कितने भी ऑपरेशन। और वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर मैं ये पीछे से लेऊँ, तो मतलब अगर यहाँ दो ही होते तो मैं एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, तो ये खाली हो गया। अगर मैं यहाँ से एक ले लूँ, यहाँ से एक ले लूँ, जब दो ऑपरेशन सेम लगे, हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मतलब वो कोई दिक्कत नहीं है। जितने तो फिर आंसर कितना आएगा, मतलब अगर यहाँ से ले यहाँ, ठीक है, और यहाँ से ले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एट द एंड फिर हमें कितना आएगा, फिर लाइक जितने नंबर ऑफ जितने वो एम्प्टी हैं, जीरो हैं, उतने उसको मैं डब्लू मान लेता हूँ, उतने डब्लू एम्प्टी हैं, प्लस उसके बाद ये पूरा सम, ठीक है, हाँ ये पूरा सम, सो इतना आंसर आ जाएगा। मतलब टोटल वैल्यूज़, मतलब कितने नंबर ऑफ जो जीरोज़ हैं, जीरोज़ वो जो, मतलब मैं जीरो काउंट स्टार्ट कहाँ से करूँगा, जब मुझे पहला नॉन डस्ट मिलेगा वहाँ से, क्योंकि अब यहाँ पे तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना, इनके तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जीरोज़ जितने जीरोज़ हैं जहाँ से मैं पहले डस्ट मिले वहाँ पे, और फिर टोटल नंबर, टोटल डस्ट कितने, टोटल डस्ट, और वो टोटल डस्ट भी n माइनस वन से लेके यहाँ तक, क्योंकि अगर n पे है यहाँ पे मुझे तो वो करनी है ना, इकट्ठी करनी है, दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो बस यही करना है। तो फिर देखना एक बार, एक दो, दो दो चार, चार तीन सात, सात आठ चार ग्यारह, हाँ सही है, ठीक है, यही है बस। तो फिर क्या लेना है, पहले तो n ले लिया, फिर वेक्टर, अरे शार टाइपिंग भी काम नहीं कर रही, जैसे टाइपिंग बहुत ज़्यादा स्लो हो गई यार। सीन ए ऑफ आई ले लिया। अब मैं पहला, मैं यहाँ से ही वो कर लेता हूँ, बूल ले लेता हूँ, ये फॉल्स, अगर पहला नॉन डेस्ट मिलेगा तो ये ट्रू हो जाएगा मेरा। तो फिर लेना कहाँ से है मुझे, ओके ये हो गया, और ये वैल्यू मतलब कि आंसर, इफ वोल इज, इफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन जीरो, तो मैं वोल को कर दूंगा ट्रू।
ठीक है, वो ट्रू हो गया। इसके बाद मैं आंसर कर दूँगा, मैं आंसर में कर दूँगा अगर जीरो आया, इफ़ ए ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, मैं इसका आंसर में लूँगा अगर वो वोल मेरा ट्रू है तो। अगर वोल मेरा फॉल्स हुआ तो फिर तो यही है कि अभी तक कोई डस्ट आया ही नहीं, तो उसको मैं लूँगा नहीं। अगर ट्रू हो गया तो डस्ट आ गया तो मैं इसको ले लूँगा, मतलब आंसर में काउंट कर लूँगा। यही आंसर आना चाहिए। आई थिंक इट इज़, आई है टी सी टी माइनस माइनस या 3 5 11 0, 3 5 11 0। ओहो, ये भी सही होगा। फोर्थ क्वेश्चन रॉन्ग आंसर इनटू, क्या कर दिया भाई, ये भी आउट ऑफ बाउंड। अरे यार, ये चेक करना पड़ेगा बार बार यार। 10 टू द पावर 9 दे रखा है, 9 और 5 14, 10 की पावर 14 तक चला जाएगा। फिर मैं सोचा यार गलत तो नहीं होना चाहिए। और कुछ बच गया इंट, और कुछ नहीं है ना काम का। शिट मैन। ओके, अब फोर्थ प्रॉब्लम, ये क्या दे रखा है, यू आर गिवन टू इवन इंटीजर एन को मैम, योर टास्क इज टू फाइंड एनी बाइनरी मैट्रिक्स ए विद एन रो एंड एम कॉलम वेयर आई के जे has exactly two different neighbor, what value in then I comma j। ओके, सो नेबर्स होंगे आई माइनस वन, ये ओके, समथिंग लाइक दैट। दिस इज फोर्थ प्रॉब्लम। यही है, मतलब ये दो डिफरेंट होनी चाहिए। कोई भी मैट्रिक्स अगर मैं लूँ, मतलब कितने की मैट्रिक्स पूछी, एन को मैम उसने मुझे दे रखे हैं यार, बड़ी मुश्किल है या। गुड। यस, तो अब ये दे रखा है तो मुझे भी लाइक इसमें ऐसे फिलअप करने हैं, 0 1 फिलअप कर, मैं 0 1 सिर्फ फिलअप कर सकता हूँ इस तरह से, मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पे 0 ले लिया, ठीक है, तो फिर एटलीस्ट दो मेरे वन होने चाहिए, दो डिफरेंट होने चाहिए, दो सेम होने चाहिए। जैसे कि इसके लाइक मैं, इसके नेबर हैं ये 1 2 3 4, तो इनमें से दो सेम होने चाहिए, दो अलग होने चाहिए। तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है कि मैं 2 बाई 2 के मैं वो भरूँ, अगर मैं लाइक ये कह रहा हूँ, मैं एक 2 बाई 2 के मैट्रिक्स की तरह फॉर्म में फिल करो, ठीक है, 2 बाई 2 के मैट्रिक्स, 2 बाई 2 के मैट्रिक्स मतलब 4,
यहाँ भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी। चल मैं हाँ बता देता हूँ, मतलब ऐसे 4 मतलब इनमें सब में ब्लैक भर दूँ मैं, मतलब 0 भर दूँ, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 0, अल्टरनेट 2x2 की मैट्रिक्स में फॉर्म पर फिल कर दो। ठीक है, और यहाँ 1,1,1,1,1, 1,1,1,1,1। ठीक है, अब कोई भी ले ले तू, मतलब इसको, ये यहाँ पे 0, सॉरी 1, अरे 0 अल्टरनेट होगा, 0 1 0, हाँ ये 1 होगा और ये 0 होगा, सॉरी माय बैड, ये 0। ठीक है, अरे बाप रे, अरे सॉरी सॉरी। ठीक है, ये 0 0, ये 1, मैं अल्टरनेटिव 1 0 मतलब 2x2 की मैट्रिक्स फिल कर रहा हूँ। तो हम देख यहाँ देखूँगा तो इसके दो टू हैं, क्योंकि देख अब देख, अब मैं, ये मेरा मैट्रिक्स है 2x2 का। ठीक है, ये दूसरा मैट्रिक्स है, ये तीसरा मैट्रिक्स है और ये फोर्थ मैट्रिक्स है। तो इसमें मैंने सब में 1 भर दिया, इसमें 0, इसमें 1, इसमें 0। ओके, तो फिर अब देख, इसमें अगर इसके मतलब कि इसके 1 के अगर मैं दो एलिमेंट बात करूँ, दो तो इसके इनसाइड होंगे और दो होंगे आउटसाइड। ठीक है, यही होगा ना, दो इनसाइड होंगे दो आउटसाइड होंगे, आउटसाइड में 0 होगा, इसमें 1 होगा। तो किसी में भी देख लेनी है, किसी में भी, क्योंकि अब 2x2 मैट्रिक्स में क्या होगा, दो इनसाइड होंगे दो आउटसाइड होंगे, इनसाइड में 1 सेम होगा और आउटसाइड में डिफरेंट होगा, बस यही करना था, बस यही करना है। इसका सॉल्यूशन भी होगा ना उसमें शायद ऐसे, हाँ शायद इसमें समझ में जाए, बी, लेकिन हाँ देख इसने 2x2 के मैट्रिक्स भर रखे हैं, ऐसे हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जितने का भी है वहाँ से फिलअप करना है। ठीक है, देख अब फिल कैसे करना है, पहले 0, फिर 2 1, फिर 2 0, फिर 2 1, फिर आगे, मतलब कि अगर एक फिल कर लेना फिर तो कोई दिक्कत नहीं, अगर तूने एक ऊपर का फिल कर लिया फिर नीचे तो वैसे ही करना है। अगर यहाँ 1 है 0 है, सॉरी 1 है तो 2 1, फिर 0 0, फिर सिमिलरली यहाँ पर 0, हाँ 1 है तो 2 0, फिर 2 1, फिर 2 0, ऐसे ही फिलअप करते जाना। एक बार ऊपर की लाइन फिलअप कर ली, फिर ऐसे ही सिमिलरली ये नीचे की लाइन फिलअप कर लेना। फिलअप कर रखा आई कॉमन, आई लेस देन 4 1। हाँ इसने भी सही कर रखा है, लेकिन अगर वो 4 से डिविजिबल है, ये 1 है रिमाइंडर, ये मतलब आई को मजे दोनों, तो फिर कितना जाएगा, नॉट इक्वल मतलब, तो फिर 0 जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, नहीं तो 0 जाएगा। बस ये भी कोड सही है, प्यारा कोड लिख रखा है इसने 2 लाइन का, ये प्यारा कोड है इसका, मस्त कोड है ये तो। लेकिन वही है कोडिंग तो, मतलब ये तो कितने बहुत तरीके हैं इसके लिखने के। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये समझ में आना चाहिए, लाइक 2x2 का हम ये फिल करेंगे।
Okay. The store sells an item. The price of item is Pi. The store management is going to hold a promotion. If a customer purchases as at least X item, Y cheapest of them are free. Okay. Okay. The management had not yet decided of exact values of X and Y. Therefore, I ask to process Q queries for which the given values of X and Y determine the maximum total value of item received for free. Determine the maximum total amount value. Okay. If one. Okay. मतलब कस्टमर को एक परचेज कराना है और उस पर बताना है कितनी वैल्यू उस पर फ्री मिली गई. ओके. एन को मैं एन दे रहा है क्या क्वेरीज हमें प्रोसेस करानी है. फिर द सेकेंड लाइन कंटेंट P1 to Pn where Pi is the price of I price and Q queries will be XI YI XY. ओके. तो बेसिकली क्या गिवन है, तो हमें गिवन है मतलब एन आइटम्स दे रखे हैं, एन आइटम्स हैं, उनके प्राइस का एक अरे दे रखा है पी. ठीक है, पी दे रखा है और क्यू क्वेरीज दे रखा है. क्यू क्वेरीज में दे रखा है एक्स कमा वाई. एक्स कमा वाई मतलब क्या है, अगर मैं एक्स परचेज करता हूँ, ठीक है, तो मुझे वाई फ्री मिलेंगे. उसमें से अगर एक्स मैंने परचेज की तो उसमें से वाई चीपेस्ट होंगी जो, ठीक है, वाई जो चीपेस्ट होंगी, जो सबसे सस्ती होंगी वाई, वो मुझे फ्री में मिल जाएंगी. अब मुझे क्या पूछा है कि मतलब कि चीपेस्ट वाली सबसे ज़्यादा करानी मुझे, यही. हट जाए यार, कहाँ यार, मुझे क्या कराना है, टोटल मैक्सिमम वैल्यू फ्री रिसीव्ड, मतलब कि जो मैं रिसीव्ड फ्री कितना करूँगा, वाई फ्री रिसीव्ड करूँगा मैं, तो इनकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए और ये कौन सी है, चीपेस्ट होनी चाहिए. तो मैं सबसे जो ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है, जो मैं एक्स प्रोडक्ट खरीदूँगा जो कस्टमर वो सबसे मैक्सिमम वाले हाई रेट वाले खरीदवा दूँ. ठीक है, जो इसमें से जो वाई होंगे उनकी वैल्यू अपने आप मैक्सिमम हो जाएगी, जो इसमें से, ठीक है ना, लेकिन इसमें जो वाई होंगे वो अपने आप चीपेस्ट हो जाएंगे. तो फिर मैं इसको सॉर्ट कर लेता हूँ सब प्राइस के अकॉर्डिंग और जितने भी इसमें से खरीदवा देता हूँ. बस यही होगा आंसर. लेकिन ये है इन ओके, एक बार खरीदता है, ठीक है ना, वन परचेज में तो कितने खरीदेगा, 5 खरीदेगा. लेकिन ये ओके. तो बस यही है, एक बार परचेज करवाना, तो एक बार मैं एक्स परचेज करवा देता हूँ. तो मैं क्या करता हूँ, मतलब कि इसको शॉर्ट करके सबका सम निकाल लेता हूँ मैं. इसको शॉर्ट किया मैंने, ठीक है, अरे को, और सम निकाल लिया, ये सम अरे है मेरा. तो अगर एक्स इक्वल टू 5 आइटम खरीदे मैंने, तो मैक्सिमम 5 खरीद ली ऊपर के, और उसमें अब मुझे चाहिए सम कितने का, 3 का. तो मुझे ये 3 का सम चाहिए, तो इसमें से ये माइनस कर दूंगा 2 का सम. 5 में से जो रिमेनिंग है वो सम माइनस कर दूंगा, 3 का समझ में किया, सिंपली हो जाएगा समझ से. ठीक है ना. यस ब्रदर. तो लाइक 800 900 1000 1200 इतनी प्रॉब्लम ईजी नहीं होती, लाइक थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है बस. इनको मार्क किया हुआ है सीन. अब मैं बेसिकली लाइक 8 इनकी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, 800 फिर 900 1000 1500 1600 तक 1700 तक कितना भी हो. ठीक है ना, उन सब की मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, वो मैं लाइक डेली 4 4 5 5 प्रॉब्लम सोल्व कर रहा हूँ, उनमें डाल रहा हूँ. सही होगा ये ना. फैक्टर ऑफ एन फोर, इसकी आदत हो गई है मुझे, 4 8 1. इसको मैं डिफाइन कर ही लेता हूँ. डिफाइन डिफाइन मतलब कि ये हो जाएगा कि
तो कोई भी कीवर्ड अपने मन से जो भी देगा ना उसको डिफाइन कर सकता है कि मैं इसकी जगह ये होगा। तो अगर मैं ये लिखूँगा तो ये रन होगा। ये होता है डिफाइन का मतलब। ये आंसर फॉर। अब इसके होते हो कोडिंग में टाइम बच जाता है और तो शायद बार बार लिखना नहीं होता वो। ठीक है, I to N हो गया। वैसे सारे आइटम ले तो पहले शॉर्ट करता हूँ मैं। A.Begin A.End और वो भी ग्रेटर से, ग्रेटर ऑफ आई पे। अब मैक्सिमम से शॉर्ट कर दिए और अब मैं इसका सम ले लेता हूँ। I-1 सम में मतलब कि A(i) क्या होगा, 0 से यहाँ तक का सम होगा। अब क्या क्वेरीज हैं, तो क्या क्वेरीज ये ले लिया मैंने। फिर इंट एक्स कमा वाई कि एक्स पे वाई मुझे वो फ्री मिलेंगे। तो अब पहले देखता हूँ लॉन्ग लॉन्ग ये क्या कहा, 10⁻⁶ है। तो मैक्सिमम कितना आंसर आ सकता है, मान ले 6 और 5 11। ठीक है ना, मैं ये कह दे कि एन के सब फ्री हैं, एन के एन। तो आंसर कितना जाएगा, सब के सब 6 और 5 11। तो लॉन्ग लॉन्ग यूज़ करना पड़ेगा। इसको डिफाइन कर लेता हूँ यार, बार बार यूज़ हो रही है। एज डिफाइन लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग। ठीक है, ये हो गया इंट कॉमा एक्स कॉमा वाई। तो आंसर कितना जाएगा, A(x) ऊपर मुझे 5 समान चाहिए तो वो 4 तक आ जाएंगे, x-1 तक आ जाएंगे। और मुझे क्या चाहिए, 2 - ये समझ में आया x-y क्यों, क्योंकि देख मैं हूँ x पे हूँ, मतलब ये है मेरा 5। ठीक है, तो मुझे अब चाहिए लास्ट के y का सम। y मेरा है 3, 3 का सम चाहिए। तो 5 में से मैं ये घटाऊँगा, ये कितने हैं ये x-y 2। ठीक है ना, तो 5 में से मैं 2 घटा दूंगा तो मुझे ये 3 का सम मिल जाएगा। बस यही कर रहा हूँ मैं भी। ठीक है, सी आउट आंसर, बस आई थिंक सो सही होना चाहिए। हम्म, ये भगवान, कभी याद रहता कभी नहीं। हम्म। Ouch. इसमें क्या दे रखा है, मेरा दूसरा गलत है, 1 से 1 आंसर इसमें। अच्छा, 1 पे 1 फ्री मिलेगा तो 0, और यहाँ ये -1 जा रहा है मेरा ना। तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, इफ़ x-y-1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन मैं आंसर में से ये माइनस कर दूँ, नहीं तो माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं है। कह रहे हैं ये 1 पे 1 फ्री है तो फिर वो तो उससे पीछे वाले का तो अवेलेबल नहीं होगा। 8 5 6, 8 5 6। ओके, सही है यार। ये समझ में आया मैंने यहाँ पे माइनस क्यों किया, क्योंकि मुझे यही, अब देखिए इसने ये कह दिया कि यहाँ पे 5 है और 5 के 5 फ्री है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाद जो बच रहा है वो माइनस कर रहा हूँ, लेकिन अगर सारे के सारे फ्री हो जाएंगे तो यहाँ पर कुछ बचेगा ही नहीं। मैं यही तो कर रहा हूँ कि लाइक इसमें जो बच गए उसमें माइनस कर रहा हूँ कि लाइक यहाँ पे मैंने 2 माइनस कर दी, फिर 3 बच गए, लेकिन इस बोल दी सारे फ्री हैं तो फिर वो तुम्हें माइनस हो ही नहीं पाएगा। तो वो मैं देख रहा हूँ, अगर वो 0 ज़्यादा आइटम है तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये एक्सेप्ट हो गया या। थैंक यू गाइज, आज मैंने 900 प्रॉब्लम सोल्व करी है। मैं डेली ऐसे ही कर रहा हूँ, 900 1000 1100 1200 ऐसे मैं प्ले लिस्ट बना रहा हूँ, तो फॉलो करते रहिए।
Okay. Yeah. Thank you guys.